تیری یاد دل میں بساتے نہیں ہے، تیرے شہر میں اب جاتے نہیں ہے۔ تیرا ذکر ہوتا تھا ہر وقت، تیری بات اب ہم سناتے نہیں ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ الیانہ ہاشم سے الیانہ منان مرزا بن گئی تھی۔ ایک ایسے مرد سے اس کا نکاح ہو گیا تھا جس کا نام بھی اس نے مولوی صاحب سے ہی سنا تھا۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کون تھا، کیا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی، فقط اس کے نام کے۔ ادھر ادھر رہنا تو کچھ لمحوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا، بجا کے پوری زندگی گزارتی۔ اسے کیسے بھی کر کے ادھر سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ نکل جاتی پھر تو وہ ہاشم سے بات کر سکتی تھی اور وہ اسے بچا سکتے تھے، مگر اس کے لیے اسے پہلے یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں کھڑی تھی جب راج کمرے میں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر نئے سرے سے اسے غصہ آیا تھا، مگر اس کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی تھی۔ جبھی اسے اگنور کیے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر جو کوئی جولری پہنی بھی تھی اب اسے اتار رہی تھی۔ کیوں اتار رہی ہو ریپنزل؟ ابھی تو میں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں۔ راج ڈریسنگ کے بالکل پاس پیچھے کھڑے ہو کر بولا تھا، تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ بنا اس کی طرف دیکھے ٹاپس اتارتے ہوئے کہا تھا، لہجے میں بیزاری واضح تھی، تم چلو اب میرے ساتھ میرے روم میں، اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے مجھ سے، اب تم ادھر میرے ساتھ ہی رہو گی۔ اس کی بدتمیزی پر فی الحال قابو پاتا تحمل سے بولا تھا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں کیوں رہوں تمہارے روم میں ادھر ہی ہوں جب تک ہوں۔ اس کی بات پر اسے غصہ ہی تو آ گیا تھا جبھی اس کی طرف بڑھتی بولی تھی، البتہ آخری بات دل میں سوچی ہی تھی، بول کر اسے پہلے سے خود پر شک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ پاگل، چھوڑو مجھے۔ راج کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا کر دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ جبھی وہ چلائی تھی، اب تو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا، تم میری ہو اب، صرف میری۔ ریپنزل، جس کا انتظار میں نے جانے کتنے سال، کتنا تڑپ تڑپ کر کیا، کتنا مانگا تمہیں، عشق بن گئی تم۔ تمہیں دیکھے بنا تمہارا طلبگار بن گیا، تمہیں دیکھنے بنا تم سے جنونی محبت کر بیٹھا۔ اب جب مجھے ملی ہو تو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کبھی نہیں جانم کبھی۔ اس کے لمبے کالے بالوں میں چہرہ چھپائے جنونی انداز میں کہہ رہا تھا، بولتے ہوئے اس کے ہونٹ الیانہ کے کان کو چھو رہے تھے۔ اس کی اتنی سی قربت پر وہ مرنے والی ہوئی تھی۔ دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، جیسے وہ پیچھے نہ ہوا تو اس کا دل باہر آ جائے گا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس کو خود سے خوش دور کرتی کپکپاتے لہجے میں گویا ہوئی، چاہتا کیا ہوں؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا سوچنے والے انداز میں بولا تھا، پھر اس کے کان کے پاس چہرہ لے جاتا گمبھیر لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا، ایک ہاتھ کمر کے گرد باندھ کر اسے اور قریب کر لیا تھا، وہی جو ایک شوہر نئی نویلی دلہن سے چاہ سکتا ہے۔ وہ بول کر لبوں سے اس کا کان چھوتا پیچھے ہو گیا تھا، پیچھے ہٹے، مجھے جانے دے پلیز۔ اس کی بات پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی، مگر جب آئی اس کی جان لبوں کو آئی تھی۔ اب اسے راج سے خوف محسوس ہو رہا تھا، تب ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی بولی تھی، چہرہ لال ہو گیا تھا، ایک دفعہ بولو کہ صرف میری ہو، صرف میری۔ ریپنزل اس کا خود کو پیچھے کرنا کو اگنور کرتا اور قریب ہوتا، الٹے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتا بولا تھا، وہ چپ ہی رہی تھی۔ اسے دور کرنا چاہا مگر ہمت ذرا سی ہلنے کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ کتنے آزاد ملک میں پلی بڑی ہوئی تھی، مگر کبھی کوئی مرد اس کے ذرا قریب نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنی حدود اچھے سے پتہ تھی اور آج اس کے قریب تھا، بہت قریب، مگر وہ تو اس کا محرم بن گیا تھا، اس کی جان، جسم و جان کا مالک، اس کا سب کچھ۔ ریمپلز، تمہارے بال مجھے بہت پسند ہیں، انہی سے تو مجھے عشق ہوا۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر اس کے بال ہاتھ میں لیتا بہت دھیمی گمبھیر لہجے میں بولا تھا، آپ کو پتہ ہے مجھے اوساکا میں ایک عورت امبروز نے ہاتھ دیکھ کر کہا تھا کہ میرے سیاہ بال ہی میری سیاہ بختی ہیں۔ بالوں والی بات سے اسے امبروز کی بولی ساری باتیں یاد آئی تھی، جبھی ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے اپنے سیاہ بال لیتی بولی تھی، ایسا ہی ہے، جبھی تو آپ کو میرے بالوں سے عشق ہو گیا، جبھی تو آپ مجھے اٹھا کر ادھر لے آئے، جبھی تو مجھے ادھر قید کر کے رکھ دیا۔ انجانے کون ہے آپ، کیا ہے، میں تو جانتی بھی نہیں آپ کو۔ اور اس امبروز نے یہ
भी तो कहा था कि कोई मेरा एक अरसे से इंतज़ार कर रहा है और उसका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, और फिर आप आए मेरी ज़िंदगी में, और आप भी उस कहते हैं कि आप मुझे कई सालों से ढूंढ रहे थे। इन्हीं बालों की वजह से मैं इधर से जाकर इन्हें कटवा दूंगी। पटर पटर बोलती उसे एकदम चुप होना पड़ा था जब राजा ने अपने धमकते होंठ उसके गुलाबी होठों पर रख दिए थे। मुबारक हो तुझे जहां भर की खुशियां, मुझे अब ये गम भी रुलाते नहीं है। तेरी जस्तजू में खुद ही को बिगाड़ा तेरा गम, मगर अब मनाते नहीं है। आप जो भी है मुझे इतना बता दे, मैंने लिया क्या है आपका? मुझे तो नाम भी नहीं पता आपका। जैसी ही गाड़ी कोर्ट के सामने रुकी, अलीजे फिर से बोलना शुरू हो गई थी। उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि क्यों वो उसे तंग कर रहा था। वाइज मिर्जा नाम है, और क्या कहा तुमने? मेरा सुकून चुरा लिया है। मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं सुकून से सो नहीं सका। तुम जादूगरनी हो, तुम्हारी आंखों में जो दिखता है वो सब भूल जाता है। तुम बहुत मासूम सी लगती हो, सबसे अलग। वाइज उसकी मासूम चेहरे को नजरों के हारस में लिए खोए खोए लहजे में बोला था, मगर मैंने तो कुछ नहीं किया। उसे अब भी समझ नहीं आया था कि उस सब में उसकी क्या गलती है। क्या वो उसे खींच कर लाई थी इसकी आंखों में देखे? नहीं तो फिर क्यों उसे तंग करके रख दिया था? तुम्हें मेरा होना होगा बस। उसकी आवाज से होश में आता हकमीना लहजे में बोला था। आवाज काफी सख्त हो गई थी। मगर मुझे वापस जाना है। वो इतना ही बोल सकी थी जब वाइज ने अचानक बाजू से पकड़कर उसे अपने बहुत करीब किया था। अलीजे ने घबरा कर नजरें झुका ली थी। वाइज की सांसों की तपिश उसका गीला चेहरा जला रही थी, मगर वो हिचकियों में रोती इस लम्हे को कोस रही थी जब वाइज ने उसे उन लोफर लड़कों से बचाया था। अब खुद उसे पीछे पड़ गया था। फिर किससे करनी है? उसके भीगे चेहरे से बाल कान के पीछे करता बिल्कुल स्पॉट लहजे में बोला था। आंखों के सामने वो मनाजर वो घूम गया था जब मार्क ने उसके चेहरे को छुआ था, जब वो विक्की के गले लगी रोई थी। गुस्से से उसकी रगें तन गई थी कि किसी से भी नहीं। वो हिचकियों में रोती बोली थी, मार्क से भी नहीं। वो जाने क्या सुनना चाहता था। वो बस चाहता था वो मासूमियत का लबादा ओढ़ दे। क्यों? निकाह के बगैर कोई मसला नहीं है तुम्हें? कमर पर गिरफ्त मजबूत करता जहरखंद लहजे में बोला था। आप गलत बातें नहीं करें, पीछे हटे, नहीं तो मैं ऊंचा ऊंचा रोऊंगी। इसकी बात पर अलीजे को गुस्सा आया था जब ही सू सू करती दोबारा हाथ से उसे पीछे करती बोली थी, मगर पीछे करने से पहले उसी की शर्ट से अपने आंसुओं से तर चेहरा साफ करना नहीं भूली थी। उसका चेहरा अपने दिल के मकाम पर महसूस करता वह सुकून से आंखें मूंद गया था। एक अजीब सा सुकून और उसकी रगों में दौड़ा था, मगर वो जल्द ही पीछे हो गई थी। वो उसे बहुत महसूस हुआ था, मगर वो अभी उसकी नहीं थी। वो चुप हो गया था। काफी देर बाद उसकी बात सोचता दिलकशी से मुस्कुराया था। जितना टाइम वेस्ट करोगी इतना तुम्हारी बीमार दोस्त तुम्हारा इंतजार करती रहेगी। वाइस बोलता गाड़ी खोलकर बाहर निकल आया था। उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने का इशारा किया था। मगर आप फिर मुझे अपने घर तो नहीं लेकर जाएंगे ना, और ना ही अगले 6 महीने मेरे सामने आएंगे? अलीजे कुछ सोचती मान तो गई, मगर उसे नई फिक्र लाहक हो गई थी। वो कुछ देर उसे खामोशी से देखता रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो कि 6 महीने निकाहनामा देखने के लिए निकाह कर रहा हूँ ना, मगर फिर उनके 6 महीने निकाहनामा देखने के लिए निकाह कर रहा हूँ ना, मगर फिर हम पर ही कफ्त करता, हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने का इशारा करता, खुद भी ग्लासेस लगाता, उसके पीछे कुछ फासले पर उसे देखता हुआ बड़ा था। खफा है मुझे मालूम है, हाथ मेरा पकड़ते हैं मगर दबाते नहीं है, पड़े हैं जाने कहाँ सब तेरे दिए। तो ताइफ अब दिल हमारा लुभाते नहीं है। तेरी सोच हावी ना रही मन पर, मोहब्बत का हक अब जताते नहीं है। हर जगह हीर हीर का शोर गूंज रहा था। वो स्टॉप लाइट्स की साथ डांस फ्लोर की तरफ बढ़ी थी। वो आज 12 साल में पहली दफा काफी
अपसेट थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कब वो डांस फ्लोर पर पहुंची थी। उसके दिमाग में सिर्फ दो चीजें घूम रही थी, एक वो सारी पेंटिंग जो राज बनाता था, दूसरी दो फोटो जो सुबह उसे आयुष के मोबाइल में दिखी थी। उसे मिलना था, राज से उसे बताना था, मगर वो बताना भी नहीं चाहती थी। ये सोच कर कि वो भी तो एक मासूम लड़की थी और वो राज के पागलपन से भी वाकिफ थी। फिर ये सोच कर कि अगर आयुष को पता चल गया तो वो भाई की मोहब्बत, इसकी खुशियों के लिए खुद गर्ज बन रही थी, पर बनना नहीं चाहती थी। अब म्यूजिक प्ले हो गया था, उसने मूव करना शुरू किया था। स्लो बीट पर वो स्लो डांस कर रही थी। उसके मूव मुख्तलिफ थे सबसे, क्योंकि वो खुद खुद से ही सीखती थी, कोई डांस टीचर नहीं रखा था। मगर बेदहारी में उसका पाँव मुड़ा था। उससे पहले वो गिरती वो खुद को संभाल चुकी थी। साथ ही कुछ मिनट की परफॉर्मेंस खत्म हुई थी। म्यूजिक की कानों को चीरती आवाज भी रुकी थी। पूरे हॉल में रोशनी फैल चुकी थी। जबरदस्त, ब्रिलियंट, बहुत कमाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। तभी इनके एंकर उसके सामने आया था। वो काफी इम्प्रेस लग रहा था। तो मेरी तरफ से सारे वोट आपके हैं हीर, मगर फैसला तो जजेस को करना है। सो आपका क्या ख्याल है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में? एंकर ही पहले ही से कहने के बाद अब जजेस की तरफ देखता बोला था, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी हीर मिर्जा, बहुत जबरदस्त। मैं हमेशा की तरह आज भी शॉक्ड हो गया आपका डांस देखकर, और वो जो आपने राउंड मूव किया, कमाल जबरदस्त था। आप बहुत आगे जाएगी। राहिल सर से अपने सामने स्क्रीन पर अपने दाएं स्कोर शो किया था। हीर आप है ही एक नायाब हीरा, मेरे पास लफ्ज नहीं है जो कह सकूं, बट एंड मैं आप मिस बैलेंस हो गई थी। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी 12 सालों में ऐसा हुआ है। एनीवे, अमेजिंग परफॉर्मेंस। जूलिया मैडम ने तारीफ के साथ उसकी गलती भी हाईलाइट करते हुए अपने दिए स्कोर शो किया था, जो आयुष से कम थे, जिसे देखते ही हर जगह आयश आयश गूंजना शुरू हो गया था। हीर को कुछ सब महसूस नहीं हो रहा था। ये भी नहीं कि वो अपने 12 साल के करियर में पहली बार ऐसी बात सुन रही थी। ये भी नहीं कि उसने आयश से शर्त लगाई थी जो वो हार चुकी थी। उसे कुछ याद नहीं था। वो बस खामोशी से आकर अपनी जगह बैठ गई थी। उसके बाद कुछ परफॉर्मेंस हुई थी और डेढ़ घंटे तक बाद 1.5 घंटे के बाद शो खत्म हुआ था। बिना किसी से मिले वो बाहर निकल गई थी। आयुष जो कब से उसे खोया खोया महसूस कर रहा था, उसके निकलते ही वो उसके पीछे आया था, मगर वो तब तक कैब रुकवा कर चली गई थी। या तो उसने आयुष को खुद को रोकते देखा ही नहीं था, या फिर इग्नोर कर दिया था। वो घुटनों पर हाथ रख कर हाथ खड़ा अ, खड़ा खड़ा हो गया था जब उससे अपने पीछे राकेल की आवाज आई थी, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? राकेल और कनाट अब उसके सामने आते मशकूक नजरों से उसे ही देख रहे थे। कुछ नहीं, बस पता नहीं हीर, मुझे डिस्टर्ब लगी और अब देखो ना, बिना बताए चली गई। आज सीधा खड़ा होता बोला था, नजरें इधर उधर ही थी जहां से वो गई थी। अरे टेंशन ना लो, वो मुझे बता कर गई है, कह रही थी कि परसों मुंबई आ जाएगी, आज कोई काम था, वापस जापान चली गई है। राकेल अपने मोबाइल में कुछ करती सरसरी सा बोली थी, चली गई, मगर क्यों? आयुष को हजम नहीं हो रहा था कि वो क्यों चली गई। शो में भी वो डिस्टर्ब थी, जाने क्या हुआ था। वो हर वक्त जंगली बिल्ली बनी रहती थी। अच्छा चलो अब कुछ खाएं, वो और फिर सुबह मुंबई की फ्लाइट है, ऊपर से अंधेरा हो रहा है। आखिर कराट ही बोला था, कहीं उसने शुक्र किया था कि वो गई थी, वरना दो दिन में 3-4 दफा सफाई करनी पड़ती थी। मगर फिर भी वो इसकी अच्छी दोस्त बन ही गई थी। चलो, आयुष ने लटके हुए मुंह से कहा था। कनाट एक हाथ उसके कंधे पर रखता, दूसरा रकेल के कंधे पर रखता आगे बढ़ा था। कुछ ही देर में आयुष दोबारा हंस रहा था। वो तीनों ऊंचा ऊंचा हंसते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े थे। सुना है किसी से ये हमने कि अब वो खुशी को खुशी से मनाते नहीं है। अरे खुद परस्ती का है ये आलम कि अब वो खुद से खफा खफा शख्स को मनाते नहीं है। नैना रुको, नैना। लैला ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका था, कई आवाजें लगाई थी, मगर वो सुन कब रही थी। जब ही वो उसके रूम में ही आ गई थी। कहाँ क्या है? नैना ने अपना पर्स
काउच पर रखते हुए बेजारी से लहजे में कहा था। वो फिलहाल तो किसी के मुंह नहीं लगना चाहती थी, लैंडा के भी नहीं। तुम फिर अध्ययन के साथ आई हो ना आज? लैंड्रा ने उसके तासरात जानते हुए उसके पास बैठते हुए कहा था। हाँ, मुख्तसर जवाब ही दिया था। तो कुछ पता चला? लैंड्रा की नजरें अब भी उसके तासरात जांच रही थी, मगर चेहरे पर तासरात नैना का चेहरा तासरात से आरी था। वो नहीं जान पाई थी उसके अंदर की हालत। नहीं, यकलफ्जी जवाब देकर फिर खामोशी से आंखें मूंद गई थी। तुम कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रही हो? अब तुम कहीं उसके लिए कुछ फील तो नहीं करने लगी हो? लैंड्रा कुछ मिनट खामोश होने के बाद दोबारा बोली थी। नैना ने झट से आंखें खोली थी। ये तो वो सवाल था जिसका जवाब उसके अपने पास भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपना फर्ज पता है, नैना ने मजबूत लहजे में कहा था। मगर आंखें मिलाने की गलती नहीं की थी। उसे लगा था जैसे उसकी आंखें चुगली खा लेगी। नैना सुल्तान आंखों में आंखें डालकर बात करनी कब से छोड़ी है? लैंड्रा का लहजा तंजिया था। नहीं, मैं नहीं भी था तो उसे फिर भी लगा था। ऐसा कुछ नहीं है। अरे, तुम्हारे ब्लूटूथ ऑन है, किससे बात कर रही थी या कर रही हो? नैना ने बात घुमाने की खातिर उसकी ब्लूटूथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसकी रेड लाइट ब्लिंक हो कर रही थी। अरे हाँ, वो मैं लोम्बरा से बात कर रही थी। लैंड्रा ने ब्लूटूथ उतार कर मुस्कुराकर कहा था। मगर हमें तो ग्रुप के लोगों से बात करना मना है। नैना ने हैरत से कहा था, क्योंकि उसे याद था कि सर बैट्रिस टेलर ने सख्ती से मना किया था कि जब तक मिशन कंप्लीट ना हो जाए इन्हें किसी को नहीं अपने प्लान के बारे में बताना था, ना मिलना था। मगर इन दोनों ने भी तो रोल ब्रेक किया था। नैना तो केस हल होने तक नहीं मिलना चाहती थी, मगर लैंड्रा के इसरार पर वो मान गई थी। अब पिछली कुछ दिनों से तो वो उसके पीछे ही पड़ी रहती थी। केस के रिलेटेड नहीं की बात यार, चलो रेस्ट करो, मैं भी अपने रूम में जाती हूँ। लैंड्रा और सवालों से बचने के लिए बेजारी से कहती बाहर निकल गई थी। उसके हाथ में ब्लूटूथ वापस कान में फिट किए थे। पास्ट वो तीनों अब अलग अलग बैंड्रा के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे, मगर हैरत की बात थी वहाँ किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था। लोग तो बस पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कहीं पर भी नहीं है? रिया ने झुंझलाकर धीमी आवाज में कहा था। रिया, तुम किस तरफ निकल गई हो? नजर क्यों नहीं आ रही? राजर की आवाज ब्लूटूथ में गूंजी थी। ओफ, इस टाइम मुझे नहीं, बैंड्रेक को ढूंढो, रिया ने तब कर कहा था। एक्सक्यूज मी, अभी राजर कुछ कहता कि रिया को अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी थी। हाय ईमान, हाशिम, रिया ने भी मुस्कुराकर हाथ मिलाया था। नैना सुल्तान, मुकाबले खड़ी लड़की ने भी मुस्कुराकर कहा था, मगर क्योंकि इन दोनों ने मास्क पहने हुए थे जभी चेहरे नहीं देख सकी थी। वहाँ कई लोगों ने स्टाइलिश मास्क पहने हुए थे जभी इन तीनों ने भी पहन लिए थे। आप बैंड्रिक सर को ढूंढ रही थी? नैना ने बतूर उसका जायजा लेते हुए कहा था। जी, वो आए नहीं पार्टी में तो बस इसीलिए। पहले तो रिया को समझ नहीं आया कि क्या कहे, फिर यही कह दिया था। हाँ, वो उधर बाहर की तरफ है अपने किसी दोस्त के साथ। नैना ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसे ये लड़की कुछ मशकूक लग रही थी, जिसे वो हर किसी से अलग ब्लूटूथ पर बात कर रही थी। ऊपर से उसका बैटरी को ढूंढने का सुनकर उसे शक हुआ था। जब भी वो उसे बैटरी के पास जाने का कह रही थी, क्योंकि अगर वही रिया या उनकी गैंग की कोई होती तब जरूर अपनी साथियों को भी बताती और वही सब वहां जाते। और वहां बैटरिक तो क्या, मगर वो एक इनदेखा जाल भी था। अगर वो वहां चली जाती और रिया होती तो अपने ही प्लान में मरती। राजर, क्या जाएं इधर? रिया नैना से दूर होती धीमी आवाज में इधर उधर देखती बोली थी। तुम जाओ, हम आते हैं। ध्यान से, अगर वहां बैंड्रिक है तो वहां सिक्योरिटी टफ होगी। ये ना हो उसको मारते मारते हम ही फंस जाएं। जवाब में राज ने दिया था। रिया एक नजर चारों तरफ डालती बाहर एक बहुत बड़े बहाल की तरफ बढ़ी थी। सर, वो लड़की बाहर ही की तरफ आई है। मैं श्योर नहीं हूँ, मगर मुझे शक हुआ। उसके जाते ही नैना ने कहा था,
दूसरी तरफ का जवाब सुनकर वो मुतमिन सी होती अब ड्रिंक कर रही थी। कौन कहता है इंसान को मारना दुश्वार है? लहजा बदल, तेवर बदल, नजर बदल और मार दे। जिंदगी तेरा सभी हुस्न बजा है, लेकिन जो तुझे गौर से देखेगा दहल जाएगा। वो अंदर हाल में दाखिल हुई थी, मगर सामने उस वाइट ड्रेस लड़के को देखकर तेवरे तीवरी चढ़ा कर दूसरी तरफ चली गई थी। हाल में ज्यादा लोग नहीं थे, काफी सिक्योरिटी भी थी। वो एक तरफ खड़ी ड्रिंक का गिलास हाथ में पकड़कर घुमाते हुए चारों तरफ का मुजाना कर रही थी। उसे वो 6 के 6 लड़के इधर नजर आ गए थे, जिनमें से सिर्फ एक के चेहरे पर मास्क था। दूर से ही उसे राज आता नजर आया था किसी दूसरे लड़के के साथ, मगर राजर कहीं नहीं था। वो गिलास मुंह से लगाए अपने शिकारी को देख रही थी, जो एक अंग्रेज लड़की के साथ हंसकर बोल रहा था, यहाँ तो लोग हैं, सबके सामने तो मार नहीं सकते। राज की आवाज ब्लूटूथ में गूंजी थी। रिया अब गिलास सामने टेबल पर रखे रखे जहां बैंड्रिक था उधर चली गई थी। मरेगा तो आज ही। राजन की आवाज दोबारा गूंजी थी, मगर ये तो किसी के निशाने पर है। रिया ने जैसे ही उसकी गर्दन पर रेड लाइट उसकी गर्दन पर देखी, जब भी फिक्रमंदी से बोली थी, मगर तभी राज आकर बैंड्रिक के सामने खड़ा हुआ था। जानता था अब शूटर शूट नहीं करेगा, एंड क्योंकि उसका निशाना तो बैंड्रिक था, मगर एन उसी वक्त उसको अपने कंधे पर बहुत दर्द महसूस हुआ था, और वो दर्द से घुटनों के बल नीचे गिरा था। स्लाइसेस गन थी, जभी आवाज नहीं आई थी। यकीनन शूटर ने पहले शूट किया था, तभी राज आया था। रिया ने जैसे ही उसे गिरता देखा, वो भागकर उसके पास आई थी, एंड उसी वक्त लाइट 2 मिनट के लिए बंद हुई थी। कई लोग अब इनके पास जमा हो गए थे। राज ने आंखों में उसे ठीक हो का इशारा किया था और जाने का कहा था, क्योंकि उस वक्त सबका ध्यान इसी की तरफ था। रिया ना चाहते हुए भी उल्टे कदम पीछे हुई थी और जाकर अब बैटरिक के सामने खड़ी हुई थी, मगर जहां पहले बैटरिक था अब उधर कोई नहीं था। ये किधर गया? वो हैरत और फिक्रमंदी से बोली थी। राजा जवाब क्यों नहीं दे रहा? उसने हैरत से कान पर ब्लूटूथ हाथ रखा था, मगर वहां ब्लूटूथ नहीं था। माय गॉड, ये किधर गया? वो अब परेशानी से इधर उधर देख रही थी। राज को तो गोली लग गई थी, अब उसे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना था, और राजर वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। वो अब हर जगह राजर को ढूंढ रही थी। हैरत की बात यह थी कि वो दूसरे लोगों में से भी कोई इधर नहीं था। वो परेशानी से अब घूम रही थी। हाल के कोने में बिल्कुल बैंड्रिक के पीछे वो खड़ा था। राज को गोली लगते ही भी उसने देखा था। फिर उसने ये भी देखा था कि रिया की जल्दी में नीचे बैठने के चक्कर में उसके कान से ब्लूटूथ नीचे गिरा था। वो इतनी ही जल्दी वो एक मास्क पहनी लड़की ने उठाकर ऑफ करके ट्रैश किया था, और इसी वक्त लाइट गई थी जब राजा ने बहुत अचानक बैंड्रिक के मुंह पर कपड़ा रखा था, मगर उसके हाथ पर एक और हाथ आया था। अब वो दोनों इस बेहोशी को पकड़े हुए थे। जब दूसरे लड़के ने हाथ हटा लिया था, शायद वो जान गया था कि इन दोनों का एक ही गोल है, और लाइट भी शायद उसी के किसी बंदे ने बंद की थी। वो दोनों उसे लिए बैक डोर से निकलकर वेला के बैक साइड आए थे और बैंडर को लाकर जमीन पर फेंका था। वहां वो दूसरे 5 लड़के पहले से ही उधर मौजूद थे। इनमें से ही एक ने जग में मौजूद पानी सब उस पर फेंका था। वो भड़बड़ाकर उठा था और खुद को इन 7 लड़कों के दरमियान में पाया था। इन सब की गन्स का रुख बैंड्रिक की ही तरफ था। बिल्कुल गंजे सर वाला बैंड्रिक पहले तो डर गया था, मगर फिर ना महसूस अंदाज में उसने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी पर क्लिक किया था। तेरा वक्त खत्म हो गया बैंड्रिक रेनाल, राजा ने पिस्टल लोड करते हुए कहा। हैंड्स अप। उससे पहले वो प्रेस करता कि उसके सर के बैक पर किसी ने पिस्टल रखा था। उसने अपना पिस्टल बैंड्रिक से दूर करता, हाथ ऊपर करता पीछे मुड़ा था। वो बाकी के लड़के भी निशाने पर थे, उन्होंने भी हाथ ऊपर कर लिए थे। राजर पीछे मुड़ा था, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने उसके सर का निशाना लिया हुआ था। राजर को 1 मिनट लगा था पहचानने में कि वो वही लड़की थी जिसने रिया को ब्लूटूथ उठाकर फेंका था। वो नैना सुल्तान थी। ये जो मैं हूँ जरा सा बाकी हूँ, वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में। मेरे अंदर थी ऐसी तारीखी कि आसेब भी डर गए मुझसे। कैसा मुझको बना दिया तूने, ये कैसे रंग भर दिए मुझ में।
तुझे तो यूं भी बिठा लेंगे लोग आंखों पर, हसीन शख्स तुझे मेरी क्या ज़रूरत है। वो अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था जिसका चेहरा मास्क के पीछे छुपा हुआ था। बुरी बड़ी बड़ी आंखें नजर आ रही थी। वो अपने रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ किए हुए थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है तुम लोगों के पास, सरेंडर कर दो। नैना ने अपने सामने खड़े राजर की तरफ देखते हुए कहा था। उसे नजर उठाकर उसने अपने चारों तरफ देखा था मगर कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने करना ही पड़ा था। एक हाथ ऊपर किए वो नीचे पिस्टल रखने झुका था। नैना मुतमिन होती अब दूसरे लड़कों की तरफ मुड़ी थी जब अचानक ही राजा ने उसके हाथ से पिस्टल लेते उसकी उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाए उसका ही पिस्टल उसके सर पर रख दिया था। ये सब कुछ सेकंड में हुआ था। नैना को समझ ही नहीं आई थी कि इसके साथ हुआ क्या है। वो राजर की गिरफ्त से निकलने की भरपूर कोशिश कर रही थी मगर बेसुध। तुम उसे छोड़ दो वरना तुम्हारे सारे साथी मारे जाएंगे। लू लुम्बरा लुम्बरार ने एक लड़के के माथे पर पिस्टल रखकर कहा था। मुझे ये बैंडेज दे दो, मैं उसे छोड़ दूंगा वरना ये मारी ही जाएगी बेवजह। राजा ने अपने बाजू जो उसकी गर्दन पर लपटा हुआ था पर जोर देते हुए बैंडेज की तरफ इशारा करते हुए कहा था। अचानक इन 6 लड़कों में से 2 ने खुद को छुड़ा लिया था और एक पिस्टल इन सिक्योरिटी फोर्सेस दूसरा बैंड्रिक की तरफ मोड़ लिया था। सरेंडर हम नहीं तुम लोग करो, पिस्टल जल्दी नीचे करो नहीं तो ये 3 बेगुनाह मारे जाएंगे जो मैं नहीं चाहता। राजा ने बाकी के 2 को मर्दों को जिन्होंने अब भी इन लड़कों को पकड़ा हुआ था देखकर कहा था। उसकी बात सुनते ही ल- लो लोमम लोम्बार और हब्बल ने इस पिस्टल नीचे रख दी थी। चलो दोस्तों अब इस कमीने को गुड बाय कहो, उसे मरना ही होगा। राजा ने कहने के साथ कई गोलियां बैंड्रक के आर पार की थी। वो जो 2 सिक्योरिटी एहलकार के दरमियान अब वहां से निकलने लगा था मगर राजा की पिस्टल से निकली गोलियां उसकी पुश्त पर लगी थी। उसका वाइट कीमती ड्रेस कुछ लम्हों में लहू रंग हुआ था। वो मुंह के बल नीचे गिरा था और फिर हर जगह फायरिंग शुरू हो गई थी। राजा ने एक बाजू से नैना को पकड़ा हुआ था जबकि दूसरे से वो भी फायरिंग कर रहा था। नैना मुसलसल खुद को उसकी गिरफ्त से निकालने की तो को 2 में थी मगर वो अपना और उसका दफा भी कर रहा था। कुछ ही देर में वहां सिर्फ वो 2 रह गए थे। वो 6 के 6 अफराद भी मारे जा चुके थे। सिक्योरिटी एहलकार में से कई जमीन पर पड़े कढ़ा रहे थे। राजा ने एक नज़र खून में लथपथ बेनरिक को देखकर तंजिया मुस्कुराहट उसकी लाश पर डालकर नैना की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो कब से चिल्ला रही थी। वो कुछ देर यूं ही उसे देखता रहा था फिर कुछ सोचता अपना गाल उसकी गर्दन पर फेरता आंखें मूंद गया था। वो कुछ लम्हे सब भूल गया था। कुछ सेकंड इसकी मदहोश कर देने वाली खुशबू को अपने अंदर उतारता झट से उसे धक्का देने वाले अंदाज में छोड़ गया था। नैना को काफी देर से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसके अचानक से छोड़ने पर गिरते गिरते बची थी। जाओ लड़की, तुम्हें माफ किया वरना इन कुत्तों की तरह तुम भी अपनी आखिरी सांसें ले रही होती। औरत को जंग में मारने का हुक्म नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूँ। उसको छोड़ते ही बिल्कुल स्पाट लहजे में कहता गन लोड करता अंदर की तरफ बढ़ा था मगर अगले ही लम्हे में लखड़ाया था। नैना की पिस्टल से निकलने वाली गोली उसकी टांग पर लगी थी। उसने खुद को गिरने से बचा लिया था। उसे अभी नहीं गिरना था, अभी रिया और राजर को सही सलामत देखना था। वो नहीं गिरना चाहता था। औरतों को मारने का हुक्म नहीं है ना, मर्दों को मारने का तो है, नैना ने स्पाट लहजे में कहा था। वो मुड़ा मुड़ा था पीछे। टांग पर शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। तुम्हें भी मार देना चाहिए था, गलती हो गई। तल्ख मुस्कुराहट इसके लबों पर रेंग गई थी। सरेंडर कर दो, शायद सजा में कमी हो जाए। नैना ने एक दफा और कोशिश की। वो उसे मारना नहीं चाह रही थी, वो बस चाह रही थी कि वो सरेंडर कर दे मगर सामने भी राजा था। सरेंडर नहीं करवा सकोगी ना ख़त्म कर सकोगी मुझे तुम। बेवजह का वक्त मत बर्बाद करो, मेरी अंदर ज़रूरत है। राजा तंजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालता बोला था। हाँ हाँ हाँ, किसको ज़रूरत है तुम्हारी, कोई नहीं बचा। तुम्हारे सब साथी मारे गए हैं। वो लड़का और लड़की दोनों सरेंडर नहीं कर रहे थे, मजबूरन उनका एनकाउंटर करना पड़ा। नैना ने हंसते हुए कहने के साथ पिस्टल का रुख उसकी तरफ किया था। हाथ कांपे थे मगर वो नज़रअंदाज कर गई।
राजर का दिमाग शल हो गया था। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुआ था। आंखें लाल हो गई थी। अगर ये सच था तो वो क्यों जिंदा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। सरेंडर कर दो। नैना की आवाज़ एक दफ़ा फिर आई थी। वो उसकी तरफ मुड़ा था। नैना को उसकी आंखों में एक कड़ब नज़र आया था। अमूमन तो ऐसे लोग हर जज्बात से आरी होते हैं, मगर वो उसकी आंखों में दुख के आसार वाज़े थे। उसने अपनी पिस्टल का रुख नैना की तरफ किया था। ट्रैगर पर उंगली रख कर चलाई थी। ठा 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 4 गोलियां एक साथ चली थी। 2 पिस्टल गिरने की आवाज एक साथ आई थी। वो मुंह के बल नीचे गिरा था। मुंह जमीन पर लगते ही काफी खून मुंह से निकला था। मास्क ने अब तक वफा निभाई हुई थी। चेहरा अब भी छुपा हुआ था। पिस्टल हाथ से गिरी थी। उसका एक हाथ पिस्टल पर ही था। आंखें तकलीफ के बासित खुल बंद रही थी। दिमाग में 2 ही चेहरे थे, राज और रिया के। खून तेजी से फैल रहा था। नियान के हाथ से भी पिस्टल नैना के हाथ से भी पिस्टल गिर गया था। वो हैरत से कभी अपने हाथ और कभी राजर से खून में लथपथ वजूद को देख रही थी। उसे नहीं पता चला था कि कब एक दमबागी आंसू दगा दे गया था। वो नहीं चाहती थी उसे मारना। वो एक सीक्रेट एजेंट थी। कई सालों से मुजरिम को सजा देने में गुजार दिए थे। वो मुजरिम को एक नज़र में पहचानने की सलाहियत रखती थी, और उससे राजर कहीं से भी मुजरिम नहीं लगा था। मरे मरे कदमों के साथ वो उसके पास नीचे बैठी थी। राजा ने आंखें खोलकर एक बार उसका मास्क लगी लड़की को देखा था, जिसे उसने छोड़ दिया था, ये जाने बगैर कि वो ही उसकी मौत बन सकती थी। तंजिया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रेंगी थी, जब जिसे मास्क ने उस नमूदार होने की इजाजत नहीं दी थी। उसने अपना हाथ राजर के चेहरे पर ले जाने के लिए आगे किया था। उसका मास्क उतारते हुए उसकी अपने हाथ खून से लाल हो गए थे। अभी मास्क उतारती के पीछे से किसी ने उसके सर पर पिस्टल मारा था। आधा उत्तरा मास्क रह गया था। वो एक हाथ सर पर रखे मुड़ी थी, मगर सर से उड़ती टेंस के बासित वो नीचे गिर गई थी। आंखें बंद करने से पहले उसने अपने पीछे खड़ा वजूद को देखा था। उससे अप्सरा किसी उससे उस पर किसी अपने का गुमान हुआ था। वो सही से पहचान नहीं सकी थी, मगर उसे लगा था कि वो उसे जानती थी। आंखें बंद हो गई थी। दिल ने वहशतें गली गली कर ली। अब गिला क्या बहुत खुशी कर ली। या दिल तो भला क्या था ऐश, फिर उसने कैसे खुदकुशी कर ली। राजर रिया चीखती उस तक पहुंची थी। उसका सर अपनी गोद में रख कर बैठी थी। उसकी सांस जैसे बंद हो रही थी। उसे लगा आज आयशा अरियान हाशिम के बाद वो एक और अपने को खो देने वाली थी। वो जब्त नहीं कर सकी थी। वो चिल्लाकर रोई, रिया उठो, हमें अभी निकलना होगा, प्लीज किसी भी वक्त आती है, जल्दी करो। राजर ने उसकी गोद से राजर को उठाते हुए कहा, मगर राजर वो अब भी राजर को देख रही थी। उसे कुछ नहीं होगा, सांसें चल रही हैं, पकड़ो उसे। राज बोलने के साथ बैक डोर की तरफ बढ़ा था। एक तरफ से रिया ने उसे सहारा दिया था। कुछ ही देर में वो उस वेला से निकल आए थे। सामने ही एक गाड़ी तैयार खड़ी थी, जिसे उन्हें इन्हीं के इंतजार में हो। रिया पहले बैठी थी, फिर राज ने राजर को बिठाया था। उसका सर रिया की गोद में था। डोर बंद करते वो खुद फ्रंट सीट पर बैठा था। ड्राइवर ने गाड़ी फुल स्पीड पर दौड़ा दी थी। कुछ ही देर बाद वो राज प्लस में थे। राजर को कमरे में लिटाने के बाद वो उधर ही बैठ गया था। डॉक्टर को पहले ही उसने घर आने का बोल दिया था, जो उनका दोस्त भी था, और अब वो उनसे पहले उधर था। सरवाइव करना मुश्किल है, हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। अमन ने राज की तरफ परेशानी से देखते हुए कहा, जिसकी नर्स ड्रेसिंग कर रही थी। जल्दी करो, फिर ये तुम्हारे अंडर ही होगा, प्लीज केस नहीं बनना चाहिए। बोलते साथ वो अमन की मदद से राजर को उठाकर गाड़ी में बिठा चुके थे। खून रोकने के लिए पट्टी तो कर दी थी। कुछ ही देर बाद वो हॉस्पिटल में थे। उसके बाद राजर का प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ था। तकरीबन 2 महीने बाद वो पहले जैसा हुआ था। रिया ने ऑफ आउट ऑफ कंट्री का घर बताकर वो कई दिन इधर ही रही थी, और फिर राजा रिकवर हो रहा था। उन्होंने सिर्फ बैंड्रेक को मारना था, जो वो मार चुके थे। खबरों के जरिए ही इन्हें पता चला था कि बैंड्रेक मारा गया है, और ये भी कैसे मारने वाले
मारने आने वाले 9 के 9 अफराद भी मारे गए थे। अब वो दुनिया की नज़र में मारे गए थे। इधर नैना को कुछ दिन बाद होश आया था। ज़ख्म गहरा होने की वजह से कई दिन वो कोमे में रही थी। होश में आने के बाद उसे पहली खबर यही मिली थी कि वो गैंग मारा गया था। न जाने क्यों मगर उसे इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी। वो खामोशी ही रही थी। फिर कुछ साल गुजर गए गए वो वापस रूटीन में आ गई थी। वक्त के साथ साथ वो केस भी एक कामयाब केस की हद तक रह गया था। वो भूल चुकी थी तुम्हारे बाद ये खुसारा हुआ, हमारा दुनिया से बेकिनारा हुआ, हमारी जन्नत में जगह बनती है, दुनिया में जो हशर हमारा हुआ। बर्बाद करके पूछा नहीं करते कैसे गुजरी कैसे गुजारा हुआ। गिर कर संभलता रहा मैं खुद ही, हमको मयसर न सहारा हुआ। बाहर निकल कर तेरी गली में कोई फिरता रहा मारा हुआ। वो जिससे सबको नफरत थी मुनीर, वो शख्स जुदा जुदा को मार प्यारा हुआ। वो आंसू जब्त करती आकर गाड़ी में बैठी थी। कुछ ही देर में क्या हो गया था। अलीज़े रेयान से वो अलीज़े वाइज बन गई थी। अब रात भी गहरी हो गई थी। उसे रोना आ रहा था। वहाँ कहाँ फंस गई थी। वाइज भी आकर फ्रंट सीट पर बैठता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। एक नज़र उसने अलीज़े पर डाली थी जिसका निचला होंठ बार बार बाहर आ रहा था। साफ जाहिर था कि वो रोने की तैयारी किए बैठी थी। दोनों हाथ एक दूसरे से मसलते वो देख सामने रही थी। वाइज बिल्कुल संजीदगी के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था मगर दिल खुशी से झूम रहा था जैसे न जाने क्या पा लिया हो। अब जो भी था जैसा भी था वो उसी की थी और यही ख्याल उसे सरशार कर गया था जिसे उसने बुरी तरह नज़रअंदाज किया था। वो अभी तक नहीं जान पाया था कि उसने उसे निकाह किया ही क्यों। वो नहीं मान रहा था कि वो उसकी मोहब्बत बन गई थी या शायद वो जानकर भी अनजान बन रहा था। अब तो मुझे उतार दे, अलीजे की उभराई हुई आवाज़ ने खामोशी तोड़ी थी। किधर उतार दूं, देख नहीं रही रात हो गई है। सामने ही देखते संजीदा लहजे में बोला था, मुझे कुछ नहीं पता बस उतार दे। वो जिद्दी लहजे में बोली, डिनर कर लो, उतार दूंगा फिर। वो जानता था कि कब से भूखी है। वो जब भी बोला था। रात भी बहुत हो गई थी। उसे भी भूख लग रही थी। नहीं खाना कुछ भी। बेदर्दी से उल्टे हाथ से गाल से आंसू साफ करते गुस्से से बोली थी। यह जाने अनजाने में वो वाइस के गुस्से को हवा दे गई थी। समझ नहीं आ रही एक दफ़ा की। वाइज ने उसकी तरफ देखते गुस्से से कहा था, प्लीज मुझे उतार दें, प्लीज नहीं जाना कहीं आपके साथ, मुझे उतार उतरो नीचे। वाइज ने उसकी बात काट कर गाड़ी सड़क के किनारे रोकता स्पॉट अंदाज में कहा। अलीजा ने एक नज़र सड़क को देखा था जो कुदर वीरान था। दूसरी नज़र वाइस पर डाली थी जो उसे गुस्से से देख रहा था। वो सीट बेल्ट खोलती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। बस उसे वाइस से दूर जाना था और जिधर जैसे भी जाती लगातार बहने वाले आंसुओं से गाल को साफ करती वो गाड़ी से दूर फुटपाथ पर आ गई थी। वायद कुछ लम्हे उसे गुस्से से देखने के बाद लापरवाही से गाड़ी फुल स्पीड से भगा कर ले गया था। उसके आंसुओं में रवानी आ गई थी। उसका पर्स न जाने किधर रह गया था। ना पैसे थे ना ही मोबाइल। वो बेबसी से उधर ही बेंच पर बैठ गई थी। सुनो, ये चंद लम्हे हैं, मोहब्बत से बसर कर लो। ऐन मुमकिन है हवा के दोष पर एक दिन तुम्हें पैगाम ये आए कि वो जिनकी जान थे न तुम, वो जान से हार बैठे हैं। वो वॉर्डरोब खोल कर खड़ी थी। न सारे कैजुअल कपड़े थे, बिल्कुल वैसे जैसे वो पहनती थी। हर चीज़ उसकी पसंद की ही थी। वो हैरत से सब कुछ देख रही थी मगर वो जो ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिल रहा था। वो परेशानी से हर चीज़ टटोल रही थी। डिनर उसने अपने कमरे में किया था। उसके बाद ही राज उसे किसी गुड़िया की तरह उठाकर अपने कमरे में ले आया था और अब वो बेचारी इस उसके कमरे में रहने की खुद में हिम्मत पैदा करती वार्डरोब के सामने खड़ी ख्वार हो रही थी। जब भी उसे अपने पीछे बहुत करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था वो एकदम पीछे मुड़ी थी जिसके नतीजे में वो उसके सीने से लगी थी। आप इधर क्या कर रहे हैं? वो उससे ऐसे दूर हुई होती वह रूप से लगी थी, सहमी नजरों से उसे दिखती बोली थी। वो खामोशी से उसके और करीब हुआ था। दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द रखते उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लेकर गया था। अलीना ने सहम कर आंखें
बंद कर ली थी। राज ने उल्टे हाथ की तरफ कबर्ड खोल कर रेड नाइटी निकाली थी। कुछ देर वो वैसे ही खड़ा उसे करीब से देखता रहा। उसकी मिची हुई आंखें, कमकमाते होंठ उसे अपील कर रहे थे, मगर वो अलियाना की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना चाहता था। इसीलिए हल्के से अपने होंठों से उसका गाल छूता पीछे हुआ था। ये लो, चेंज कर लो, काफी रात हो गई है, फिर सोते हैं। उसके कुछ दूर होता अलियाना का कपकपाते हाथ में नाइटी पकड़ा था, धीमी आवाज में गोया हुआ। अलियाना ने हल्के से आंखें खोलकर नाइटी को देखने के बाद बेतरतीब सांसों के साथ चेंजिंग रूम में भाग गई थी। राज भी अपना नाइट सूट लेता वॉशरूम में चला गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो फ्रेश सा बाहर आया था, मगर सामने का मनाजिर देखकर उसका दिमाग ही आउट हो गया था। अलियाना कंफर्ट लपेटे सोफे पर सोने का शुगल फरमा रही थी। थोड़े से बालों के अलावा वो सारे कंफर्ट में दुबकी हुई थी। रैम्पल्स, उठो, बेड पर सो। उसके पास आता गुस्सा जब्त करता कुदरत तहम्मुल से बोला, मगर वो होश सोई सोई बनती रही। मुझे पता है तुम जाग रही हो, जल्दी उठ कर बेड पर जाओ, सख्ती पर मजबूरी मत करो। उसे जरा सा ना हिलते देखकर सख्ती से बोला था। अलियाना ने आंखें जोर से बंद कर ली थी। वो किसी सूरत उसके साथ बेड पर नहीं सोना चाहती थी। जब ही उसके आने से पहले ही सोती बन गई, मगर वो भी राज था, अपने नाम का एक। राज ने एक बार फिर उसे डीठ बनता देखकर खुद आगे बढ़कर उसे कंफर्ट समेत अपने मजबूत बाजू में उठाकर बेड की तरफ बढ़ा था। छोड़ो प्लीज। अलियाना तो इसी से डर रही थी, तभी चिल्लाकर हाथ पांव मारती बोली, आज के बाद खुद ही इधर आ जाना, वरना तुम मुझे भारी बिल्कुल नहीं लगी हो। उसको बेड पर लिटाता बोला था। अलियाना झट से उठी, दिल जोरों से धड़क रहा था। वो पीछे की तरफ खिसकती कंफर्ट मजबूती से थाम गई थी। बाल बेड पर बिखर से गए थे। ये क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़े। राज ने खुद भी लेटते उसको दूसरे कंफर्ट से आज़ाद करता अपने करीब करके अपने कंफर्ट उस पर भी डाल दिया था। जब भी वो गुस्से से चिल्लाती बोली थी, उसकी पुश्त राज के सीने से लगी हुई थी। राज के दोनों हाथ उसके पेट पर बंधे हुए थे। रैम्पल, सो जाओ यार, क्यों आजमाना चाह रही हो। अब आवाज आई तो सब भूल जाऊंगा, फिर मैं सोने नहीं दूंगा रात भर। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि खामोशी से सो जाओ। उसकी गर्दन से चेहरे उसकी गर्दन से चेहरे की ही मदद से बाल हटाता उधर अपना चेहरा रखता गंभीर लहजे में बोला था। आवाज मचलते जज्बात की तहत भारी हो गई थी। सांसें भी भारी सी थी। ये महबूब की कुर्बत का असर था, कुछ मलकियत की खुमारी भी थी। वो, उसका इश्क, उसका सुकून उसकी महरम बन चुकी थी। सरशारी खून की मांद रगों में दौड़ रही थी। अलियाना ने जोर से आंखें मीच ली थी, सांसें भारी हो गई थी। उसे गुस्से के साथ साथ रोना भी आ रहा था। एक पाँव से दूसरे पाँव को मसल कर खुद को रिलैक्स कर रही थी, मगर कुछ सेकंड बाद प्यासे अपने पाँव पर राज का पाँव महसूस हुआ। उसे बंद आंखों के साथ ही दोनों पाँव दूर किए थे। सो जाओ यार, राज की गिरफ्त और मजबूत करते सख्ती से कहा था। उसे कहाँ यूं नींद आती थी। उसे बस उसे हरकत करना बंद कर दिया था। अगर सोने की नाकाम कोशिश भी कर रही थी। हम थे ठहरे हुए पानी पे किसी चांद का अक्स, जिसको अच्छे भी लगे उसने भी पत्थर फेंका। खुदा की कसम, बख्त उसी के हैं जिसके हिस्से में फिकत आप आए। वाइट प्लेन शर्ट पर ब्लैक सूट पैंट पहने, बालों को ढीली सी पोनी किए, चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाए, ब्लैक ही हाई हील शूज पहने वो गाड़ी से निकली थी। गाड़ी लॉक करती वो अंदर बड़ी। राजवेला तारीखी में डूबा हुआ था। सुबह के 4 बज रहे थे। वो अभी अभी ही पहुंची थी। शाम में शो के बाद 6 बजे की फ्लाइट से इधर पहुंच गई थी। इसका दिल बेचैन था। बटन दबाकर उसने सारे घर की लाइट्स ऑन कर दी थी। कुछ देर सोफे पर बैठने के बाद वन ओपन किचन में चली गई थी। सारे सफ़र में सोई ही रही थी, इसलिए अब नींद तो नहीं आई थी, बस भूख ही लगी थी। ये इतना सारा खाना किसने बना दिया। फ्रिज खोल कर देखा था, जो कई डिशेस में भरा था। तभी खुद से बोली थी, फिर सब पर लानत भेजती। शामी कबाब की ट्रे निकाल कर उसमें से 3 पीस
पीस निकालकर प्लेट में रखकर उसे ओवन में रखने के बाद बकिया दोबारा फ्रिज में रख दिए थे। तब तक कॉफ़ी बनाकर ओवन बंद करके प्लेट निकालकर ट्रे में दोनों चीज़ें रखकर अपने कमरे में चली गई थी। ट्रे टेबल पर रखने के बाद कोट उतारकर बेड पर रखते वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद वापस आकर बेड पर बैठी थी। कंफर्ट सीधा करके बेड पर बैठती गोद में ट्रे रखकर टीवी लगा ली थी। जब ही अचानक किसी ख्याल के तहत उसने आगे होकर कोट के पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा था, जिसमें बेशुमार आयश की कॉल्स थीं। कुछ राकेल की भी थीं, राजर की भी थीं। फ्लैट में तो वो मोबाइल यूज़ कर ही नहीं सकी, जब ही अब देख रही थी। कुछ सोचकर उसने ब्लूटूथ कनेक्ट की करती वो आयश को कॉल बैक कर चुकी थी। कुछ बेल्स जाने के बाद कॉल उठा ली गई थी। हेलो, हीर ने फॉक्स से कबाब मुंह में डालते हुए कहा। दूसरी तरफ आयश ने मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोककर मोबाइल देखा था, जहां हीर का नंबर शो हो रहा था। बिना देर किए कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाकर दोबारा बिस्तर पर टर्न हुआ था। हाँ, हेलो। हीर किधर चली गई थी यूं अचानक? ना कुछ बताया, बस अचानक चली गई। आयश मोबाइल कान से लगाता ही शुरू हो गया था। अर्जेंट काम आ गया था, जब ही आना पड़ा। मुंह से निवाला हलक से उतारती हुई बोली थी। ऐसा भी क्या काम आ गया जो यूं सब छोड़कर भाग गई? जानती हो कितना परेशान हो गया था मैं। इसी तरह लेटे हुए कहा था, लहजे में फिक्रमंदी वाज़ेह थी। तुम क्यों इतना परेशान हो गए थे? काफ़ी का सिप लेते मज़े से बोली थी। क्योंकि मैं तुमसे। वो यकदम चुप हुआ था, आंखें बंद। वक्त से भागी नींद आंखों से भागी थी। वो उठकर बैठ गया था। हीर काफ़ी का सिप लेती लेती रुकी थी। एक पल को धड़कन भी रुकी सी थी। क्योंकि हाँ, कल रात को हमारा कॉन्सर्ट है ना, इसीलिए। चेहरे पर हाथ फेरता बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, साथ ही बिना कोई बात सुने कॉल काट दी थी। पहुंच जाऊंगी मैं रात में, कुछ घंटों के लिए ही आई हूँ। नहीं, खराब होगा तुम्हारा कॉन्सर्ट। हीर ने कॉफ़ी का कप ट्रे में तकरीबन पटकते हुए जले हुए लहजे में कहा। उसका मूड ही ऑफ हो गया। उसका दिल किया था वो अपनी बात पूरी करता। वो सुनना चाह रही थी, मगर ट्रे साइड टेबल पर रखती वो आंखें मूंद गई थी। दूसरी तरफ आयश हैरत से मोबाइल को देख रहा था कि अब मैडम को गुस्सा क्यों आया। कुछ न समझ आने पर मोबाइल बेड पर फेंकता दोबारा नींद की वादियों में जाने की तैयारी कर ली थी। कोई धागा तुझसे जोड़े तो मन्नत की बांधूं डोर पिया, चल मुझसे इश्क दोबारा कर, चल फिर से नाता जोड़ पिया। वो बेड पर चुत लेटा छत को घूर रहा था। कंफर्ट आधा बेड पर और आधा वुडन फ्लोर को छू रहा था। बेड पर सिगरेट के खाली डब्बे पड़े थे। कुछ सिगरेट बेड पर ही पड़े थे। ऐश ट्रे जले हुए सिगरेट से भरी हुई थी। वो न जाने किन सोचों में गुम था। आंखें लाल अंगारा हुई थी जब उसकी रात भर जागने की चुगली खा रही थी। गिलास फ्लोर के पर्दे आगे होने के बावजूद सूरज की पहली किरण कमरे में आकर कमरे में मौजूद तारीखी को ख़त्म कर गई थी। वाइज ने कमरे में रोशनी देखकर मंदी मंदी आंखों से पूरे कमरे का जायजा लिया था। फिलहाल तो उसे ये रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जब भी माथे पर पहले से ही मौजूद बलों में इजाफा हुआ था। बेड पर से एक सिगरेट निकालकर उसे सुलगाकर उल्टे हाथ से कंफर्ट पूरा नीचे फेंकता उठकर सारे पर्दे हटा दिए थे। कमरा पूरा रोशन हो गया था। गिलास डोर को हटाता वो कमरे से मुंसलिक बालकनी में मौजूद एक स्टाइलिश झूले पर बैठकर अब दोबारा सिगरेट पी रहा था। उसने आज शाम अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार रात से सुबह होती देखी थी। पूरी रात आंखों में काट दी थी। उसने आंखें मूंद कर सर झूले के बैग से अटकाकर हाथ में मौजूद सिगरेट नीचे फेंककर उसे बुझा दिया था। रात को लीजे को रास्ते में ही उतारने के बाद वो कुछ आगे गया था, मगर फिर चाहकर भी वो उसे यूं रात को अकेला सड़क पर नहीं छोड़ सकता था। जब भी दिल के हाथों मजबूर होकर वो वापस पलटा था, मगर सामने का मनाजर देखकर वो पागल ही हो गया था। अलीजे मार्क के साथ खड़ी मुस्कुराकर बात कर रही थी। वो गाड़ी से बाहर खड़ा उससे कुछ बोल रहा था, जब भी वो खिलखिलाकर हंसी थी। वो दोनों उसके मुखालिफ समत खड़े थे, जब भी उसे देख नहीं सके थे। देख तो वायस भी इनके चेहरे नहीं सक रहा था, मगर उसे पता था वो मार्क ही था। और फिर मार्क ने अलीजे को बाजू से पकड़कर गाड़ी में बिठाया था। वायस ने जोर से आंखें बंद कर ली थी। स्टीयरिंग पर गिरफ्त तन्हाई सख्त हो गई थी। वो गाड़ी जा चुकी थी। काफ़ी देर इधर ही खड़े होने के बाद वो घर आ गया था। बिना किसी से मिले या कुछ खाए वो अपने कमरे में बंद हो गया था।
रात का मनाजिर याद करते उसने एकदम आंखें खोली थी, जो अब पहले से ज्यादा लाल हो रही थी। जो भी है, जैसा भी है, वो अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। अचानक दिल ने जैसे उसे तसल्ली दी थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई थी। हाँ, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ वाइज मिर्जा की। उसे मैंने उसे मैं ले आऊंगा अपने पास, बहुत पास। वाइस ने मुस्कुराकर सर दोबारा पीछे अटका लिया था। आंखों के सामने उसका खूबसूरत मासूम चेहरा गुजरा था। मुस्कुराहट और गहरी हुई थी। हाँ हाँ हाँ, दिमाग को जैसे उसकी मुस्कुराहट पसंद नहीं आई थी जब भी वो हंसा था। वो तुम्हें तो पसंद ही नहीं करती, तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम उसके ज़रा से करीब हो तो वो डर जाती है। दिमाग उसे वर्गला रहा था, जिसमें वो कामयाब भी हुआ था। वाइस के चेहरे से मुस्कुराहट यकदम गायब हुई थी। वो तुम्हें नहीं, मार्क को पसंद करती है। जभी तो उस दिन उसके खुद को छूने पर कोई रिएक्ट नहीं किया, तभी तो तुम्हारे जाते ही मार्क को बुला लिया रात को। वो तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं है। दिमाग ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो देख कर दोबारा बोलना शुरू किया था। वो मासूम है, वो ये बातें नहीं समझती। वो मार्क को पसंद नहीं करती, वो तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। वाइस उसके पास तो कोई मोबाइल नहीं था जो रात को वो मार्क को बुलाती। दिल ने एक बार फिर अलीजे की साइड ली थी, मगर वो सिर्फ 6 महीने के लिए तुम्हारी है, बस। दिमाग दोबारा बोला था। दिमाग की बात करके वो खुलकर हंसा था, जैसे उसने ये बात एंजॉय की हो। वो मासूम भी है, वो मेरी भी है। उसे बहुत जल्द ले आऊंगा अपने पास। सर दोबारा झूले पर अटका कर खुद से ही बुड़बुड़ाता वो आंखें मूंद गया था। सूरज अब काफी ऊपर आ गया था। उसे कहना उसकी याद में बेहद अजियत है, या अपने नक्श धो जाए या मेरा फिर से हो जाए। कमरे में रोशनी की वजह से उसकी आंख खुली थी, मगर खुद को राज के इतने करीब देखकर उसके होश उड़े थे। वो राज के सीने पर सर रखे हुए थी, राज के दोनों हाथ उसके गिर्द हाथ बांधे हुए थे। ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो राज के हाथ खुद से हटाने की कोशिश करते खुद से ही बुड़बुड़ाई, फिर पीछे पीछे हटे प्लीज, वो छोड़े मुझे। जब उसकी गिरफ्त से नहीं निकल सकी, तभी हाथ उसके सीने पर मारती ऊंची आवाज में बोली, क्या हुआ रैम्पल्स? ये तुम मेरे ऊपर क्या कर रही हो? राज, जो उसके हिलते ही जाग गया था, उसके यूं चिढ़ाने पर उसे और चिढ़ाता संजीदा लहजे में बोला था, मगर ग्रीन आंखों में शरारत वाज़ेह थी। मैं नहीं आई, तुम ही लाए हो। अब प्लीज हटो, मेरे बालों पर भी लेटे हुए हो, दर्द कर रहे हैं। वो रो देने को करीब थी। आखिरी दफा समझा रहा हूँ, तुम नहीं बोला करो, शौहर हूँ, इज्जत किया करो। राज ने उस पर गिरफ्त सख्त करते हुए बिल्कुल स्पष्ट लहजे में कहा, जबरदस्ती का शौहर? मैं नहीं मानती तुम्हें शौहर। हटो। दिल में डर कर डर को छुपाती मजबूत लहजे में गोया हुई, साथ ही साथ अपने कमर से उसके बाजू हटाने की कोशिश भी कर रही थी। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं कि शौहर हूँ तुम्हारा? उसकी गर्दन में चेहरा छुपाती मखमूर लहजे में बोला था। प्लीज छोड़ो मुझे, मुझे वॉशरूम जाना है, हटो। उसके हाथों पर अपने नाखून मारती गुस्से से बोली थी। बाल सारे चेहरे पर बिखरे हुए थे। थोड़ी देर लेटी रहो, गुस्सा मत दिलाओ। उसकी बार बार एक ही रट से तंग आकर गुस्से से बोला था, साथ ही अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़ दिए। आग जंगली! वो गर्दन पर उठते दर्द से चिल्लाई थी, मगर वहां फर्क किसे पड़ता था? इतने में ही तुम्हारी चीखें निकल रही हैं, आगे क्या करोगी? रैम्पल्स उसकी गर्दन पर अपना चेहरा फेरता मखमूर लहजे में सरगोशी नुमा बोला था, और साथ ही करवट बदलकर उसके ऊपर आ गया था। प्लीज हटो ऊपर से, मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ इधर, प्लीज, मैं भाग जाऊंगी। देखना तुम। एक हाथ उसके कंधे पर रखे उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते बेबसी से बोली थी, रैम्पल्स, इधर से जाने का तो सोचना ही छोड़ दो, क्योंकि मेरे होते ये नामुमकिन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें मैं खुद से दूर किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। तुम मेरा सुकून हो, और अपना सुकून अपने हाथों से कोई बर्बाद नहीं करता। तुम्हें अब हमेशा मेरे पास राज की कैद में रहना होगा, तुम चाहो या ना चाहो। पहले तो इधर से निकल ही नहीं सकती, अगर निकल भी गई तो जंगली जानवरों की खुराक बन जाना। इनसे भी बच गई तो याद रखना, तुम मुझसे कभी नहीं बच सकोगी। बहुत बड़ी सजा दूंगा, बहुत बुरी। उसकी शह रग पर अंगूठा फेरता जनूनिया से बोला था। ग्रीन पुरसरार आंखें लहू टपक रही थी।
गर्दन की रगें वाज़ेह हो रही थी। वो इसके खुद से दूर जाने का सोचकर ही पागल हो रहा था। कई सालों बाद मिली थी, अब ऐसे कैसे जाने दे सकता था। मुझे जाने दो। भूरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। ये सोचकर ही वो हलकान हो रही थी कि अब उसे इधर रहना पड़ेगा। रैम्पल्स, मैं अभी वो कुछ बोलता तभी दरवाज़ा नॉक हुआ था। हल्के से उसके माथे पर लब रखे वो पीछे हुआ था। उसके पीछे होती ही अलियाना गहरे सांस लेने लग गई थी। आंसू लगातार बह रहे थे। सर नीचे। राजर सर, आपको बुला रहे हैं। राज के यस बोलते ही मैं मेड चाइनी जबान में बोलती चली गई थी। मैं फ्रेश होकर नीचे जा रहा हूँ, तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ। तुम्हारा ब्रेकफास्ट इधर ही ले आऊँगा। राज इसकी तरफ देखता नरम लहजे में बोलता बेड से उठ गया था। जहर ला दो बस, मुझे नहीं खाना और कुछ भी। खान गुस्से से बोलती वो कंफर्ट ऊपर अपने ऊपर खींच कर दोबारा लेट गई थी। राज कुछ देर खामोशी से खड़ा उसे देखता रहा था, फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। रिया, तुम कब आई? नीचे आते ही उसकी नज़र रिया पर पड़ी थी, जो किसी बात पर राजा से बहस कर रही थी। राज की आवाज़ सुनते ही वो पीछे मुड़ी थी। आओ ना राज, खड़े क्यों हो? बैठो, कुछ खाते तवाज़ुन करने दो अपनी इकलौती बहन को, अपनी जिसे निकाह के छुआरे तक खिलाना गवारा नहीं किया। उसको देखती ही उसके सामने खड़ी होती, उससे सोफे की तरफ इशारा करती, एक लफ्ज़ बोल चबा कर बोली थी। वो राजर को उठते उठते ही बाहर उसके पास आ गई थी, मगर उसे फिर ये जानकर झटका लगा था कि राज ने अलियाना को किडनैप करके उसके साथ निकाह तक कर लिया है। उसे तो सब भूल कर ये सदमा लग गया था कि उसने अपनी इकलौती बहन को बुलाना दूर और सामने देखती ही और उसे सामने देखती ही वो शुरू हो गई थी। राज ने एक नज़र राजर पर डाली थी, जैसे पूछना चाह रहा हो कि क्या ज़रूरत थी अभी बताने की। हाँ, अब उसे घूरो। अपनी जबान बेचकर छुआरे मंगवाए थे ना? उसे चुपचाप राजर की तरफ देखता पाकर दोबारा बोली थी, ऐसी कोई बात नहीं है रिया, सब जल्दी में हुआ, वक्त नहीं मिला। राज सोफे पर बैठता नॉर्मल अंदाज में बोला था। हाँ, वक्त नहीं मिला, एक लड़की को किडनैप करके ले आए, फिर जल्द ही निकाह करना था ना? जानते भी हो कौन है वो, क्या बैकग्राउंड है उसका? रिया उसके इतने नॉर्मल रिएक्शन पर जब्त से मुठ्ठियां भेजती कुदरत धीमी आवाज में सोफे पर बैठती बोली थी, तुम कैसे जानती हो कौन है वो? राज ने मशकूक नज़रों से उसे देखते हुए कहा, अभी राजर ने बताया है। रिया संजीदगी से गोया हुई, वो उधर बताने तो अलियाना के बारे में ही आई थी, मगर इधर आकर जो सुना था वो हक्का बक्का रह गई थी। जब ही उसने इरादा बदल लिया था, अब वो नहीं बताना चाहती थी। अब तुम दोनों टॉम एंड जेरी का सीज़न 2 बंद करोगे? कुछ देर मैंने ज़रूरी बात करनी है। राजा, जो कब से खामोश बैठा इन दोनों को लड़ता देखता थक गया था, जब भी अब गुस्से से बोला था, क्या जरूरी बात? राज सीधा होकर बैठता संजीदगी से बोला था। रिया भी संजीदा हो गई थी। 6 साल पहले हमने बैंड्रेट को मारा था, अब उसका बेटा हमारे बारे में जान गया है। पहले तो मैं बात वा, वायरल हो गई थी कि हम मर गए हैं। पहले तो बात वायरल हो गई थी कि हम मर गए हैं, मगर अब उसे पता चल गया कि हम जिंदा हैं। और जो आदमी इधर तक पहुंचा था वो भी कार्लोस का था। वो अब हमारे बारे में जान गया है। वो हमसे अपने बाप का बदला लेना चाह रहा है, और इसमें उसने पुलिस और सीक्रेट एजेंट के लोगों को शामिल कर लिया है। दुनिया के सामने पेश वो भी एक बिजनेस टाइकून है, मगर उसका लिंक माफिया के साथ भी है, और अब बहुत से माफिया मैन हमारे पीछे एक दफा फिर पड़ गए हैं। राजा वुडन फ्लोर को देखता स्टॉप लहजे में बोला था। ग्रीन आंखें लाल हो गई थी। वो जब जब बैंडरिंग का नाम लेता था उसका यही हाल होता था। उसने खुद मारा था बैंडरट को अपने हाथों से, मगर दिल था कि मानता ही नहीं था। वो समझता था कि जितनी सजा उसे मिली वो बहुत कम थी। जब भी वो चाहता था कि उसे तड़पा तड़पा कर मारे, जैसे उसकी वजह से वो अपने बचपन में तड़पे थे, अपना बचपन बर्बाद कर गए थे। तुम्हें ये सब किसने बताया? राज ने हैरत से उसे देखते हुए कहा। रिया भी हैरत से मुंह खोले उसे ही देख रही थी। वो तुम्हारा मसला नहीं है, जिसने बताना था बता दिया, वो बिल्कुल स्पाट लहजे में बोला था। तो अब मतलब अब हम क्या करेंगे? दोबारा से वही लड़ाई झगड़े? ओ गॉड! रिया परेशानी से माथा मसलती बोली थी, मतलब सारे मसले एक और ही ना, मतलब कि
मतलब सारे मसले एक ही दफ़ा नाज़िल होने थे। अब बस देखते हैं वो क्या करता है, उसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता है। राजर इन दोनों को हैरान और परेशान शक्लें देखता बोला था। अच्छा। राज गहरी सोच में बोला था, 6 साल पहले की बात और थी, तब वो अकेला था, मगर अब वो अपने साथ एक मासूम जान को बाँध चुका था। वो जो खतरों के खेल खेल समझकर खेलता था, अब उसे एक अनजाना सा खौफ था। वो लियाना के बारे में सोच रहा था। तो तुम्हें कब निकलना है? काफी देर की खामोशी के बाद राजन रिया को देखता बोला, घंटे तक। मुख्तसर जवाब देकर दोबारा खामोश हो गई थी। कि तुम अलियाना से मिल लो ना, फिर साथ ही ब्रेकफास्ट करते हैं। वो एक नज़र राज को देखता बोला था, ना जी शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ा उससे मिल लो। क्या बोलूं जाके उसे, मैं उसकी बहन हूँ कि तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर बीवी बना चुका है? ओ प्लीज़, लड़की हूँ मैं भी एक, अपने सामने ही अपने जैसी लड़की को इतना बेबस नहीं देख सकती। वो गुस्से से बोलती उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उसकी उठती राजर भी काम का बोलता बाहर निकल गया था। राज काफ़ी देर इधर ही बैठा अनजाने किन सोचों में गुम हो गया था। फिर कुछ सोचता उठकर किचन की तरफ बढ़ा था। वो बार बार फ़ोन बजने की आवाज़ से उठी थी, बेड पर हाथ मारती बिना देखे कॉल जस्ट करती, मोबाइल कान से लगा गई थी। हेलो। वो अपने बड़े से टैडी को हग करती बोली थी। आवाज़ से साफ पता चला था वो अभी ही उठी थी। रात को वॉइस के उसे रास्ते पे उतार कर बाद वो इधर ही बेंच पर बैठ गई थी। कुछ ही देर बाद उसे वहाँ मार्क आता दिखाई दिया था। पहले तो वो नहीं मानी थी कि उसके साथ जाने की, फिर और कोई चॉइस ना होने पर उसे उसी के साथ आना ही पड़ा था। क्लच तो न जाने उसका किधर रह गया था, मगर लकीली कल उसका मोबाइल घर ही रह गया था, जिसकी वजह से वो गुम होने से बच गया था। दूसरी तरफ वाइस उसकी आवाज़ सुनकर सड़क गाड़ी की सीट के बैकअप पर अटकाता आंखें मूंद गया था। एक सुकून सारे जिस्म में फैला था। कौन है? बोलो भी, नींद से जगा दिया। जब कुछ लम्हे कोई नहीं बोला था, तभी एक नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर डालकर बेजारी से बोली थी, क्या हुआ प्रीटी गर्ल, तुम इतनी जल्दी भूल गई मुझे? एक ही तो रात गुजरी है तुम्हें मेरा होते हुए। वाइस बात कर रहा हूँ, उसी तरह आंखें मूंदे सरशारी से बोला था। क्या? वो दोबारा सोने की तैयारियों में थी। उसकी बात सुनते ही चीख कर बोली थी, साथ ही उठकर बैठ गई। नींद तो जैसे आई ही नहीं हो। वो तो भूल गई थी कि रात को उसके साथ हुआ क्या था। वही डार्लिंग जो सुना है। लगता है एक रात में अपने शौहर को भूल गई, मगर मुझे एक पल नींद नहीं आई। उसकी चीख सुनने के बाद वो 2 मिनट मोबाइल कान से दूर करते दोबारा कान से लगाते हुए बोला था, मैं कोई नहीं जानती आपको, और आपको कहा भी था 6 महीने तक अपना मुंह ना दिखाना। फिर काल की वो डर को छुपाए मजबूत लहजे में बोली थी। कौन सा अभी वो सामने था जो उसे डरती? जब भी पटा पटा जबान चल रही थी। अच्छा। तुमने कहा था कि 6 महीने नजर ना आना, मगर तुम तो कह रही कह रही थी तुम मुझे जानती ही नहीं। और क्या खूब कहा है। मैं किधर नजर आ रहा हूँ तुम्हें? वॉइस कॉल है, वीडियो नहीं। वॉइस अब खुद संजीदगी से बोला था। यकीनन उसे अलीज़े का लहजा और बात पसंद नहीं आई थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, सोना है मुझे बस। इसकी अपनी कोल्ड आवाज़ सुनकर अपनी खुश्क लबों पर को तर्क करती धीमी आवाज़ में बोली थी, बहुत सो लिया है, उठो नीचे आओ, अगले 10 मिनट में मुझे नीचे मिलो, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। उसके फ़ोन बंद करने से पहले ही वो दो टोक लहजे में बोला था, किधर नीचे? मैं हॉस्टल में हूँ। आज मैं यूनी भी नहीं गई, सिर्फ इसलिए कि मुझे सोना था। उसकी बात सुनते ही जल्दी से बोली थी, जितना कह रहा हूँ इतना करो। 10 मिनट में से 1 मिनट ज़ाया हो गया, 9 मिनट रह गए। ना आई तो मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हें सबके सामने उठाकर ले आने में, और उस ग्रेलेट और अगर और इस ग्रेलेट हुई तो भी मेरे पास ही आओगी। इतनी ही सख्त सज़ा मिलेगी। अपनी बात कहकर बिना उसकी सुने कॉल काट गया था। अधर अलीजा हैरत से मोबाइल को देख रही थी, मगर फिर वक्त देखती जल्दी से कपड़े लेती वॉशरूम में भागी थी।